high voltage drama unfolded between Shimla and Delhi police over the arrest of 3 accused in the shirtless protest at the AI Impact Summit in New Delhi. A jurisdictional clash between the Himachal Pradesh and Delhi police escalated after Shimla police on early Thursday morning stopped the Delhi police personnel midway on National Highway 5 while they were taking the 3 arrested accused of the Indian Youth Congress workers Saurav, Arbas and Siddharth under transit remand. The Delhi police was asked to join them in their investigation regarding the FIR registered by the Shimla police. The Shimla police told Delhi police team that only 3 personnel can move the 3 accused arrested. The remaining police personnel have to stay back to join the investigation. Listen in to what the Delhi police team replied. शोगी से शोगी में फिर से सुबह से मेरी आपने हुई है उसके बाद आप 8 बजे आता हूँ मैं खा देते हैं आपको FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट दिखाते हैं मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है पहले वो कह रहे थे सीज किया है, वो है नहीं इनके पास ना, कर नहीं सकते ना सर। ऑलरेडी हमने जो चीज ऑलरेडी डीवीआर हमने सीज कर रखा है और आप उसके सस्पेशन पे कि डीवीआर चोरी हुआ है व्हिच वाज ऑलरेडी सीज्ड बाय अस, हमने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रखा है। आप उसको सर्च करने के लिए मेरी गाड़ी कैसे सीज कर सकते हो? पॉसिबल नहीं सर। आप सभी लोग जा रहे हैं वापस। जी जी आता हूँ। मैं खा देते हैं आपको FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट दिखाते हैं मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है सर, मैं ये सेइंग दिस सर, मैं ये नहीं कह रहा। एक मिनट, मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर एक क्योंकि आप जो कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम इन्वेस्टिगेशन करने से रोक में लेते हैं। आपके ऊपर FIR दर्ज है। आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। Meanwhile, the Himachal police detaining the 20-member Delhi police team even after the additional chief judicial magistrate granted transit remand for the 3 youth Congress activists. The Himachal Pradesh police had summoned the 3 for a fresh court appearance following their detention by Delhi police from Shimla, which the state force deemed unauthorized for lacking prior notification. The situation became further complicated after Shimla police registered a case against Delhi police personnel, alleging that the 3 men had been forcibly taken from a resort earlier in the day. ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। एक सेकंड सर, मैजिस्ट्रेट साहब ने अप्रूव कर दिया है ट्रांजिट रिमांड और अक्यूज को कंसर्न लोकल मैजिस्ट्रेट को पेश करने जा रहे हैं। आप लोकल में दिल्ली लोकल मैजिस्ट्रेट यहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिल गया। हाँ, ट्रांजिट रिमांड। थैंक यू। The Shimla police also took the seizure of one vehicle of the Delhi police, alleging that the vehicle contained a DVR occupied by the Delhi police in the presence of an independent witness. The Shimla police alleged that these 3 accused were forcibly taken away by the Delhi police, and the DVRs of the CCTV cameras at the resort where the 3 accused were staying were taken without a memo or receipt by the Delhi police. Meanwhile, a team of the Delhi police is moving towards the national capital with the 3 youth Congress office bearers and has crossed Solan in Himachal Pradesh. The Haryana border is now only about 40 kilometers away. दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना ये बहुत ही और बे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़कर के मैं अगर बात कहूं, इंटरस्टेट ऑपरेशन जब होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, कि जो पुलिस आती है उनके साथ कोऑपरेशन करना, उनके साथ कोऑपरेट करना। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के कहने पर दिल्ली की पुलिस को, हिमाचल की पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको डिटेन तो किया ही किया, लेकिन उसके बावजूद फजीहत हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश की इस तरह से कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, जहां देश के खिलाफ एक तरह का प्रदर्शन, देश के विरोध एक तरह का वो प्रदर्शन किया गया है। ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश में शरण देना ये बहुत ही निंदनीय है। शोगी से
Well, high voltage drama unfolded last night between Delhi police and Himachal police over the arrest of 3 youth Congress workers. The arrest is in connection with the shirtless protest at the AI Impact Summit. The 3 workers had fled to Himachal Pradesh. Delhi police overnight took action and detained the 3 workers. Himachal police, although claims that there was no prior information and permission with the Delhi police, lot of drama unfolded last night. Although the Delhi police as of now has the transit remand order and they have taken the accused arrested to Delhi. I'm being joined by my colleague Mohit Malhotra for more on this. Mohit, ये जो कल रात को दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में जो वारदात हुई है, ये किस तरीके से पैन आउट हुई थी, किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, इसके बारे में एक बार बताएंगे? देखिए, पूरी रात ये काफ़ी ड्रामा चला। सबसे पहले जो 3 यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है एआई समिट प्रोटेस्ट को लेकर, उनको कोर्ट में ले जाने को लेकर काफ़ी देर बहस हुई और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो है वो वहां पर रोक दी गई हिमाचल पुलिस के द्वारा। सबसे पहले आपको मैं लाइव एक्शन दिखाता हूं क्या हो रहा है। मेरे आगे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से निकलकर दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं इस वक्त वो आगे चल रही हैं और ये जो आपको स्कॉर्पियो गाड़ियां दिख रही हैं दिल्ली नंबर, ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल गाड़ियां हैं जिनको हिमाचल में रोका गया था और ये लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। देर रात को एसीजीएम के घर पर जाकर इनको जो 3 कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको वहां पर प्रोड्यूस किया गया। उनका ट्रांजिट रिमांड लिया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन हिमाचल पुलिस ने इनको सुबह 6 बजे तक रोके रखा और कहा कि हमने आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की है, आप इन लोगों को जबरन यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अगर आपको कोई लोकल लेवल पर ऑपरेशन करना था तो हमें जानकारी में क्यों नहीं लिया गया, हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। तो इन सारे विवाद के बाद एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो आगे अभी चल रही है, सबसे आगे लीड कर रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उस गाड़ी को इम्पाउंड करने के लिए भी बहुत कोशिश की हिमाचल पुलिस ने, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स ने हिमाचल पुलिस के सीनियर ऑफिशियल से बात की और आखिरकार ये जो काफिला है अब वो हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंच गया है। पहले ये लोग हिमाचल से पंजाब आए और अब पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहित, आपने जो जैसा बताया कि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो ये कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने फॉलो नहीं करी थी। दिल्ली पुलिस अब कह रही है कि उनके पास ऑर्डर है, उनके पास ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर आ चुका है, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में टकराव की नौबत आई कैसे? देखिए, इस पूरे मामले में सीधे तौर पर हिमाचल पुलिस का कहना था कि जो पूरा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने किया वो हमारी नॉलेज में नहीं था, जबकि एक नियम है, जो कानून कहता है, जो प्रोटोकॉल है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं किसी भी एक्यूज की अरेस्टिंग करने के लिए या फिर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, तो आपको लोकल पुलिस को लूप में रखना है, लोकल पुलिस को अपने साथ में रखना है, उनको इन्फॉर्म करना है और उसके बाद ही आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो 3 यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं जो रुके हुए थे, ये सीधे तौर पर ये एक जानकारी दिल्ली पुलिस के पास थी कि एक लोकल कांग्रेस लीडर है जो कि इन लोगों को शेल्टर दे रहे हैं और एक रिजॉर्ट में इनको रखा हुआ है। इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि लोकल लेवल पर पॉलिटिकली ये बात लीक हो कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर इनको पकड़ने के लिए आ रही है, ऑपरेशन करने जा रही है। इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस ने कोशिश की कि इसकी जानकारी ना मिले और फिलहाल लेकिन काफ़ी टकराव हुआ, रात भर ये सब चलता रहा। हालांकि कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दे दिया था, लेकिन हिमाचल पुलिस का कहना था कि उन्हें कुछ गाड़ियां इंपाउंड करनी हैं जो कि यहाँ से दिल्ली पुलिस जिस गाड़ी में आई थी उसके अंदर ही इन 3 लोगों को यहाँ से जबरन ले जाने की कोशिश हुई है। तो एफआईआर एक रजिस्टर की गई है और उससे जुड़ा ये मामला है और ये कहकर एक गाड़ी जो सरकारी गाड़ी थी दिल्ली पुलिस की उसको इंपाउंड करने की कोशिश की गई। इसी को लेकर काफ़ी बहस हुई, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास ये जो काफिला है दिल्ली पुलिस का जो पूरा आप देख रहे हैं ये इस वक्त हरियाणा की ओर बढ़ रहा है। पंजाब में इनको बिल्कुल नहीं रोका गया। पंजाब पुलिस ने इस पूरी कंट्रोवर्सी से, इस पूरी जो भी टकराव चल रहा था उससे अपने आप को दूर कर लिया। उनका कहना था कि हमारा इसमें कुछ भी
लेना देना नहीं है। ये हरियाणा पुलिस और हिमाचल पुलिस का मामला है। जैसे मोहित, जैसा हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। अब 3 गिरफ्तारी और हो चुकी है। इसमें और दिल्ली पुलिस कितनी गिरफ्तारी और कर सकती है? देखिए, दिल्ली पुलिस इसमें भी और भी गिरफ्तारियां कर सकती है, लेकिन हिमाचल में जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां पर ये जानकारी थी कि 3 यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो छुपे हुए हैं और तीनों इस इंसिडेंट में शामिल थे, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके अंदर ये टकराव की स्थिति देखी गई थी। लेकिन फिलहाल हिमाचल में जो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है और इस वक्त आप ये जो पूरा कॉन्वॉय देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का, ये हरियाणा की ओर एंटर हो रहा है और हरियाणा में जाने के बाद ये लोग दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। मोहित, अब आगे इसमें हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब इनको कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पे उन्हें प्रोड्यूस करा जाएगा। इसी के साथ ये जो कल हादसा हुआ है, इस तरीके से ये देखा भी जा सकता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया। दोनों देशों की, दोनों राज्य सरकार की पुलिस आपस में इस तरह से भिड़ गई। देखिए, बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल मैटर बन गया है और जयराम ठाकुर जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में और एक्स सीएम हैं बीजेपी के, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सब कुछ राहुल गांधी को खुश करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, अपनी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है। ये बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस इन तीनों को ले जाकर कोर्ट में पेश करेगी। वहाँ से इनका पुलिस रिमांड मांगा जाएगा ताकि पता लग सके कि जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें इन लोगों के रोल को लेकर जो पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस होने की बात कह रही है उसको जुटाने की कोशिश की जाएगी।